Hi guys, I hope you all are doing well. So today we will study active voice and passive voice. What is an active voice and then passive voice? Before understanding this, let me explain you what is subject, because the whole topic active voice and passive voice revolves around the subject. It based on the subject. As you have studied, the subject is the one which comes first in the place in a sentence, or subject is always a doer. But that is not correct. Sometimes subject may come first, sometimes subject may not come first. Subject may be a doer, subject may not be a doer. Let's take the example. If I say that he reads a novel, in this subject is he, means subject is a doer and subject is coming first. But if we change this sentence into passive voice, that a novel is read by him. A novel, here subject is a novel, but it is not doer. Doer is him, that is object. So it's not necessary that subject is always doer and the subject always comes first. Subject may come in the between of the sentence also and in the end of the sentence also. Subject is basically what we talk of. हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो subject होता है. If I give you an example that just outside my house there are two shops which always remain closed. In this फर्स्ट सेंटेंस में है जस्ट आउटसाइड माय हाउस, बट आगे हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं टू शॉप्स का विच ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड. तो ऑब्वियस सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें हमारा टू शॉप्स, बिकॉज बात किसके बारे में हो रही है, डिस्क्रिप्शन किसके बारे में दिया है. एज आई सेड दैट व्हाट वी टॉक ऑफ, सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक ऑफ. बेसिकली जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है. लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल दैट ही डज नॉट कुक फूड. In passive, food is not cooked by him. I hope subject is clear to you. Now let's move to the active voice and passive voice. Active voice, a sentence which begins with the performer of the action, that is subject. In this, he, doer. The doer of the action. When the sentence begins with the doer of the action is done by whom? And then verb will come and then the object or person that the action is performed on, और किसके ऊपर वो action हो रहा है वो आएगा. This is called an active sentence. Basically active sentence वो होता है जिसमें subject जो होता है, जो first person होता है वो doer होता है, वो काम कर रहा होता है, performer होता है. And passive voice में sentence start होता है object से, उस person से जिसके ऊपर वो action हो रहा होता है, object या फिर person. लाइक ही रीड्स अ नॉवल. यहाँ पे जो ही था वो नॉवल पे वर्क कर रहा था, नॉवल को रीड कर रहा था. अब अ नॉवल इज रीड बाय हिम. नॉवल वर्क नहीं कर रही, नॉवल इज नॉट अ डूअर बट नॉवल सब्जेक्ट है. बेसिकली नॉवल के बारे में बात हो रही है. कौन वर्क कर रहा है उस पे? हिम. वर्क वही कर रहा है बट हमने चेंज कर दिया, पैसिव में कर दिया उसको. तो बेसिक कंसेप्ट ये होता है इसका कि सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट. और जो टेंसेस चेंज होते हैं, जो टाइप्स ऑफ टेंसेस चेंज होते हैं, लाइक वर्ब कैसे चेंज होने हैं वो अभी हम पढ़ेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज, जब हम एक्टिव वॉइस यूज कर सकते हैं तो व्हेन शुड वी यूज अ पैसिव वॉइस. हम जो एक्टिवली कह सकते हैं, एक्टिव वॉइस में अगर हमें वो सेंटेंस कहना है, हम नॉर्मली उस बात को कह सकते हैं, तो हम पैसिव वॉइस क्यों यूज करें. तो फर्स्ट, व्हेन वी डू नॉट नो हु द सब्जेक्ट इज, जब हमें सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है या सब्जेक्ट को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, देन वी यूज पैसिव वॉइस. लाइक समबडी क्लीन्ड द रूम, द रूम वाज क्लीन. मेन मैटर क्या है कि रूम क्लीन हो चुका है. अब हु क्लीन द रूम, इट डजंट मैटर फॉर अस. देन वी कैन यूज पैसिव वॉइस. अ नॉवेल वाज रिटन, who wrote the novel, doesn't matter. Then when it is obvious to the listener or reader who the subject is, because it is the person who usually does it. जब listener को या reader को पता हो कि subject क्या है, कौन है, because हमें पता हो कि वो person वही काम करता है, वो उसी के लिए अपॉइंट हुआ है, तो हम passive voice कर सकते हैं. The cleaner cleaned the room was cleaned. अब obviously clearly understood है. If I say that the room was cleaned by cleaner only, not the management will clean it, not the students. Then when we give more importance to the object of the sentences rather than the subject, जब हम subject से ज़्यादा object को importance दें, like the glasses were broken,
अब when I want to tell anyone that I broke the glasses, but I don't want to take my name, then I will use the passive voice that the glasses were broken. I don't want to tell who broke the glass, whether I or anyone else. I hope it is clear to you. Now, main thing, how we will change active into passive. First of all, as I told, that put the object of the verb at the beginning of your sentence, and if subject is something relevant, then you can put, otherwise no. Like in this we have seen, we didn't put the subject, the somebody, and here the cleaner. So if subject is relevant, means it is important to tell about that person, then we can put, otherwise no. यूज द वर्ब टू बी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लाइक डू डज, इज आर एम, वॉज वर, हैज हैव, तो वो हमें ऑक्सिलरी वर्ब जरूर यूज करनी है, वेदर एक्टिव में हुई हो या नहीं हुई हो, पैसिव में हमें यूज करनी है। और पैसिव का टेंस जो है वो वही रहेगा, टाइप चेंज हो जाएगा टेंस का, टाइप्स अलग होते हैं और टेंस अलग होते हैं, टेंस वही रहेगा। इफ सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, देन पैसिव वॉइस विल बी इन प्रेजेंट टेंस। पास्ट है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा। Put the main verb in the past participle form. ये बात बिल्कुल माइंड में बिठा लेना कि जो हमारी मेन वर्ब होगी, जो एक्शन हो रहा होगा हमारा, वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल में होगा। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड। We will put the main verb in the past participle form, means third form of the verb. तो एक्शन वर्ड होगा वो हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। Now, some rules to change active voice into passive voice, like present simple tense. As you have studied, present simple tense जो होता है उसमें हम helping verb use नहीं करते हैं। जो उसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन होता है वो सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन एस और ईएस। एस और ईएस तब ऐड होता है जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर होता है, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस चेंज होगा, वो तो बिल्कुल क्लियर है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। बाय का वर्ड, बाय वर्ड का यूज होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। अब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज हो जाएगी इज, एम, आर। Like if I take an example, he writes an essay. An essay is written by him. See more example, that she loves her daughter. Her daughter is loved by her. Now, present continuous tense. Present continuous tense means the action which we are doing right now. It is also known as progressive tense. In this, helping verb is used, that is, rm, and then first form of the verb will be used, and ing in active voice. When we change into passive, same helping verb will be used, but we will add being also, then third form of the verb, and then by subject. बाकी as it is रहेगा, बस helping verb में कुछ changes आ जाते हैं। main verb जो होगी वो हमेशा verb की थर्ड फॉर्म रहेगी, चाहे आपका tense present हो, past हो या future हो। Take the example that Sam is playing guitar. So the guitar is being played by Sam. We are laughing at her silly things. Her silly things are being laughed at by us. प्रोनाउन चेंज होता है, जैसे आई का मी हो जाएगा। जो हमारा सब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन दिया हुआ है तो उसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा। यहाँ पे हम सब्जेक्ट में जब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होता है, लेकिन अगर वही प्रोनाउन हम ऑब्जेक्ट के तरह यूज हो रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट एंड द हैज हैव वर्ब यूज होती है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होती है। तो हमारा जो पैसिव वॉइस है उसमें हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी और बीन का यूज हो जाएगा, हम बीन ऐड कर देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। मेन वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रहेगी। लाइक राम हैज क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, द मास्टरपीस हैज बीन क्रिएटेड बाय राम। द इंसिडेंट हैज ब्रोकन मी, आई हैव बीन ब्रोकन बाय द इंसिडेंट। अच्छा, ऐसा नहीं करना है कि जैसे हमने सपोज यहाँ पे हैज यूज किया है तो हमें ऐसा नहीं कि हेल्पिंग वर्ब अगर यहाँ हैज हो रही है एक्टिव में तो हम पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब वही करेंगे, नहीं। हम पैसिव में जब भी हम सेंटेंस चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे आई है तो आई के साथ हमको पता है कि हैव यूज होता है, और यहाँ पे ही होता तो हमें पता है कि ही के साथ हैज यूज होता है। दैट मैटर्स। पास्ट सिंपल टेंस,
सिंपल टेंस पास्ट की फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट एंड देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ऑब्वियस जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने इज आर एम में चेंज किया था, तो जो सिंपल पास्ट है वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स simple tense changed into continuous tense. Now, was verb, then third form of the verb, then by. Rama paid the bills. The bills were paid by Rama. He attacked me with a knife. I was attacked with a knife by him. Or we can use that I was attacked by him with a knife. Because in this two objects are given. अब ये देखेंगे कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लेना है, किस पे होगा। लाइक ही अटैक्ड मी, तो वर्ब किस पे एक्शन हो रही है, मी पे। तो ऑब्वियस इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अगर वर्ब किसी और ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रही होती तो हम उसको सब्जेक्ट में चेंज करते। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था, इज आर एम था हेल्पिंग वर्ब हमारा और हमने बीइंग ऐड कर दिया था। पास्ट कंटिन्यूअस में भी सेम रूल है, was were helping verb है, then we will add being and third form of the verb will be used. Just keep in your mind that in every passive voice we have to use third form of the verb and tense will not change whether it is present, past or future. Asha was learning English. English was being learned by Asha. A senior officer was investigating that case. That case was investigated by a senior officer. Now past perfect tense. Easier one, has been, has have था, have ने has been कर दिया, had है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कुछ नहीं करना है, बीन का ऐड कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही यूज होगी जो एक्टिव में यूज हुई है। Hina had won the match. The match had been won by Hina. We had not heard that song before. That song had not been heard before by us. ना फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस में विल का यूज होता है। तो ऑब्वियस जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस को हमने कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया था, तो फ्यूचर सिंपल भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। दैट इज ऑब्जेक्ट प्लस विल बी। लाइक मनु विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय मनु। ही विल पास द एग्जाम विल बी पास्ड बाय हिम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता है, वो पैसिव में चेंज नहीं होता है, ओनली एक टेंस आपके पैसिव में चेंज होते हैं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। बाकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं वो आपके पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपके पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। तो जो हमारे पास टेंसेस के टाइप्स रहते हैं एक्टिव वॉइस में, वो हमारे पास 12 रहते हैं, बट पैसिव वॉइस में हमारे पास ओनली 8 रहते हैं, बिकॉज 4 टेंसेस के टाइप्स हमारे चेंज नहीं होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल हैव का यूज करते हैं, तो पैसिव में हम विल हैव बीन लगाएंगे। लाइक इंडिया will have won the match. The match will have been won by India. My sister will have cooked delicious food. Delicious food will have been cooked by my sister. Now, अब active and passive voice rules of imperative sentences. Imperative sentence पढ़े होंगे कि वो कौन से होते हैं। Imperative sentence होते हैं जो कमांड देते हैं किसी को, या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं किसी को। लाइक एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है, बहुत इजी होता है, इसमें हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करते, बिकॉज व्हेनेवर वी यूज इंपेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड यू होता है। जब भी हम कमांड दे रहे होते हैं हम थर्ड पर्सन को कमांड नहीं देंगे, जो पर्सन हमारे सामने बैठा है जिससे हम बात कर रहे हैं उसी को हम कमांड देंगे। तो ऑब्वियस टू whom we are talking that person is second person, that is you. So इसमें normally if I want to give anyone's command and someone is sitting in front of me or to whom I am talking, I will say that please bring me a glass of water. I will not say you will bring me a glass of water. I will just command him or her. तो verb होता है और object होता है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो लेट का यूज करते हैं और बाकी सब वही चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट पहले हो जाता है, देन बी का यूज होता है, थर्ड फॉर्म होती है, या फिर हम लेट का यूज करके ऑब्जेक्ट बी, थर्ड फॉर्म एंड बाय यू कर देते हैं, बिकॉज एक्टिव वॉइस में क्लियरली अंडरस्टूड होता है कि कमांड में सब्जेक्ट यू है। लाइक इफ आई से शट द डोर,
Let the door be shut by you. Open the shop. Let the shop be opened by you. I hope it is understood how to change imperative. Now, if WH questions है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो जो हमने टेंसेस में चेंज किया वैसे ही होंगे, लेकिन व्हाट इफ हमारे पास WH क्वेश्चंस हैं तो हम कैसे करेंगे? बिकॉज इसमें सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, WH क्वेश्चन भी है, वर्ड है। तो एक्टिव वॉइस है अगर व्हाई डू यू नॉट लव योर पेट, तो हमारे जो WH क्वेश्चन वर्ड होगा वो फर्स्ट में ही रहेगा। बाकी जैसे हमने टेंस में चेंज किया था वैसे चेंज करेंगे। दैट व्हाई डू यू नॉट लव योर पेट, व्हाई इज योर पेट नॉट लव्ड बाय यू, बिकॉज डू का यूज है, मीन्स सिंपल टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, डू डज यूज हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस होगा। इज में चेंज हो जाएगा, योर पेट सिंगुलर है इसलिए हमने इज का यूज किया है, इज योर पेट नॉट लव्ड बाय यू। अगर हम इज प्लस नॉट लिखते, इजंट लिखते, तो हम पहले लेते व्हाई इजंट योर पेट लव्ड बाय यू। हु इज रीडिंग द रामायण, हु को चेंज करते हैं हम बाय हुम में, बाय हुम इज द रामायण बीइंग रेड, और वी कैन से और हु इज द रामायण बीइंग रेड बाय, or we can say Ramayana being read by whom. I hope it is understood. So let's take an example. In this, a sentence is given and you have to change into passive voice. Let's select the correct passive form of the given sentence, that Ananya plucks fresh flowers from the garden every day. फ्रेश फ्लावर्स हैव बीन प्लक्ड बाय अनन्या। ऑब्वियस सेंटेंस से हमें समझ में आ रहा है कि प्लक्स प्रेजेंट टेंस में है, फ्रेश फ्लावर्स वर प्लक्ड, तो ऑब्वियस वर तो नहीं होगा हमारे पास, से एलिमिनेट हो गया। फ्रेश गार्डन इज प्लक्ड, गार्डन तो हो ही नहीं रहा, फ्रेश फ्लावर्स हैं, तो बी और सी हमारा एलिमिनेट हो गए हैं। फ्रेश फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय अनन्या, यहाँ देखो यहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है, तो ऑब्वियस कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, फ्रेश फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय अनन्या फ्रॉम द गार्डन एवरी डे। They will put away their woolens after the festival of Holi. Will का यूज हो रहा है तो फ्यूचर टेंस में ही होना चाहिए। फर्स्ट है आर बीइंग, रॉन्ग हो गया, हैव बीन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड में है विल बी, put away after the festival of Holi. That is the correct answer because will को देखा करो। Then in this sentence is given and you have to select the correct active form of the given sentence. Means आपका जो sentence है वो passive voice में दिया है और आपका active voice में change करना है। Like Dinesh was looked after by his grandmother when his parents went abroad. दिनेश का ध्यान कौन रख रहा है? grandmother, तो grandmother subject हो जाएंगी। Dinesh grandmother looks after him when his parents went abroad. ये देखो यहाँ पे पास्ट में हो रहा है, वो भी वॉज यूज हो रहा है। वॉज वाले तो इतने इजी रहते हैं, आपको बस बीइंग ऐड कर देना है, सेकंड फॉर्म ऐड कर देनी है। दिनेश ग्रैंडमदर लुक्ड आफ्टर हिम, जो भी हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए पढ़ा था, बस पैसिव को एक्टिव में चेंज कर देना है, उसको रिवर्स कर देना है। दिनेश ग्रैंडमदर लुक्ड आफ्टर हिम व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रॉड। दिनेश लुक्ड आफ्टर हिज ग्रैंडमदर, दिनेश वाज नॉट लुकिंग आफ्टर हिज ग्रैंडमदर, टोटली रॉन्ग। Dinesh's grandmother was looking after him when his parents went abroad. Was है, was looking तो होगा नहीं उसका, obvious second sentence हमारा correct होगा looked, तभी हमने was looked लगाया होगा पैसे में। Rudra was laughed at by all his friends when he wore his socks inside out. If Rudra wears his socks inside out, all his friends will laugh at him. ये तो condition बता रहे हैं, conditional clause है हमारा, wrong हो गया। When Rudra wore his socks inside out, all his friends were laughing at him. It could be, देखते हैं। All his friends will be laughing at Rudra for wearing his socks inside out. No, will में है, यहाँ पे तो past में है। All his friends laughed at Rudra when he wore his socks inside out. When Rudra wore his socks नहीं, जब ये भी कंडीशन हो गया तो हमारा जो डी सेंटेंस है वो करेक्ट है, दैट ऑल हिज फ्रेंड्स laughed at Rudra when he wore his socks inside out. I hope it is clearly understood to you. Thank you so much.